2 பீட்டர் 1:3 தம்முடைய மகிமையினாலும் காருண்யத்தினாலும் நம்மை அழைத்தவரை அறிகிற அறிவினாலே ஜீவனுக்கும் தேவபக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் அவருடைய திவ்ய வல்லமையானது நமக்கு தந்தருளினதும் அன்றி. दूसरे पत्रस के किताब में पहले अध्याय के 3 वचन में परमेश्वर का वचन इस प्रकार कहता है, क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी की पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है. ठीक है. ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் வேண்டிய யாவற்றையும் जीवन கொடுக்கிறது. जीवन और भक्ति से संबंध जो कुछ भी रखता है वो परमेश्वर हमें देता है. யாவற்றையும் सब कुछ, யாவற்றையும் सब कुछ. நம்ம ஜீவனுக்கு என்ன வேணுமோ, தேவ பக்திக்கு என்ன வேணுமோ எல்லாமே நம்மளுக்கு கிடைக்குதாம். जो भी हमें जीवन के लिए चाहिए या ईश्वरीय भक्ति के लिए चाहिए वो सब हमको ईश्वर ही से मिलता है. ஜீவனுக்கு என்னென்ன தேவை, हमारे जीवन को क्या क्या चाहिए. ஒவ்வொருத்தரும் ஒன்னொன்னு சொல்லுவாங்க. சில பேர் சுகம் வேணும்பாங்க முதல்ல, சில பேர் பணம் வேணும்பாங்க. कुछ लोग बोलेंगे कि सुख की ज़रूरत है, कुछ लोग बोलेंगे कि भाई पैसे की ज़रूरत है. நிறைய லிஸ்ட் இருக்கும் ஜீவனுக்கு தேவையானது ஒவ்வொருவருக்கும். जीवन की जो भी चीज़ें ज़रूरत है उसमें बहुत बड़ी एक यादी हम तैयार कर सकते हैं. ஆனா ஜீவனுக்கு முதல்ல என்ன தேவை தெரியுமா? आपको मालूम है कि जीवन को सबसे प्रथम क्या चाहिए? பாவ மன்னிப்பு. सबसे पहला चाहिए पाप की क्षमा. 1 யோவான் 1:7 இப்படியா சொல்றது. पहले यूहन्ना के किताब में पहले अध्याय का 7वां वचन इस प्रकार कहता है, இயேசுவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி சுத்திகரிக்கிறது. परमेश्वर का वचन कहता है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है. ஆண்டவரின் பிறப்பு பாத்தீங்கன்னா परमेश्वर का जन्म बोले तो அவர் கன்னி மரியாளுக்கும் ஜோசப்புக்கும் பரிசுத்த ஆவியினால பிறந்தாரு. वो एक कन्या मरियम और यूसुफ को परमेश्वर की ओर से वो जन्मे हैं. யூசுப் கூட சந்தேகப்பட்டு இவளை ரகசியமா தள்ளி வச்சிடலாம், அவன் நல்லவனா இருந்ததுனால ரகசியமா ஒருத்தருக்கும் தெரியாம இவளை தள்ளி வச்சிடலான்னு நினைச்சானோ. यूसुफ भी मरियम के पति ने वो रहस्यमय तरीके से मरियम से मैं डाइवर्स ले लूँगा करके किसी को ना समझे बगैर करने की उसने ठानी थी. ஆனா தேவ தூதன் மூலமா ஆண்டவர் பேசினாரு, இது வந்து பரிசுத்த ஆவியினால உற்பத்தியானதுண்டு. लेकिन परमेश्वर के स्वर्गदूत के द्वारा यूसुफ से परमेश्वर ने बात की कि ये यीशु मसीह परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुए हैं. அப்ப அவர் வந்து பரிசுத்த ஆவியினால பிறந்தாரு. அதுக்கப்புறம் தான் அவங்க வந்து குடும்பமா கூடி வாழ்ந்தாங்க. यीशु பிறந்ததுக்கு அப்புறமா यीशु मसीह के जन्म होने के बाद में ही मरियम और यूसुफ एक वैवाहिक जीवन को जिए. பரலோகத்திலே அவருக்கு பேர் வச்சாச்சு இயேசு என்று. यीशु मसीह के इस धरती में आने के पहले ही स्वर्ग में उनका नाम यीशु करके नाम लिखा गया था. நமது பாவங்களுக்காக உலகத்துக்கு வந்தார். हमारे पापों के लिए वो धरती में आए. பூமியில ரத்தம் சிந்தினார். इस धरती में उन्होंने अपने लहू को बहाया. எனக்காக உங்களுக்காக மரித்தார். मेरे लिए और आपके लिए वो मरे. மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழுந்தார். तीसरे दिन वो जीवित हो उठे. நம்ம निனைக்கலாம் உலகத்துல எவ்வளவோ அநியாயம் நடக்கிறது, நம்ம பண்றது ஒண்ணுமே இல்லையே. हम लोग सोच सकते हैं कि दुनिया में कितने घनघोर पाप है, हम लोग करते हैं वो तो कुछ भी नहीं है. கொலை பண்ணாலும் பாவம்ங்கிற ஹெட்டிங்ல தான் வருது. अगर हम मर्डर भी करेंगे तो भी वो पाप ही के यादी में आता है. சின்னதா ஒரு 10 ரூபாயை ஏமாத்தினாலும் அது பாவம்ங்கிற ஹெட்டிங்ல தான் வருது. हम यदि किसी को 10 रुपए को भी हम जुटला देंगे तो वो भी पाप ही के श्रेणी में आता है. தேவன் முதல்ல ஆதாம்ங்கிற மனுஷனை படைச்சாரு. परमेश्वर ने सबसे प्रथम आदाम नाम के एक व्यक्ति को उन्होंने उत्पत्ति किया. துணையா ஏவாளை கொடுத்தாரு. फिर उनके साथी हवा को दिया. ஏதேன் தோட்டத்துல அவங்கள ரொம்ப ஆசீர்வாதமா வச்சிருந்தாராம். एदेन की वाटिका में परमेश्वर ने आदम और हवा को दोनों को बड़ी आशीषित परिस्थिति में रखे थे. அங்க பொண்ணு வந்து விளையுமா. वहाँ पे सोना जो था वो उगता था.
ஏதேன்னா இன்பம்னு அர்த்தமா. एदेन का नाम है कि अच्छा करके, அவ்வளவு நல்ல வாழ்க்கையை ஆண்டவன் கொடுத்திருந்தாரு. इतना अच्छा जीवन उन दोनों को दिया था. நம்மளை குறிச்சும் ஆண்டவரோட நோக்கம் அதுதான். हमारे प्रति भी परमेश्वर की इच्छा यही है. ஆனா ஆதாம் வந்து மனைவி பேச்ச கேட்டு ஆண்டவர் வார்த்தையை புறக்கணிச்சு முதல்ல பாவம் பண்ணான். लेकिन आदम ने अपने पत्नी के अपने बातों को सुनकर सबसे पहला उसने पाप किया. அந்த பாவ விதைய போட்டுட்டான் உலகத்துல. वो पाप के वो बीज को उसने इस धरती में बो दिया. அது இப்ப ரொம்ப பெருசா வளர்ந்தாச்சு. आज वो बहुत बड़ा हो गया है. ஒரு குழந்தையை எடுத்துக்கோங்க. एक छोटा सा बच्चे को ले ले, கீழே விழுந்துருச்சுன்னா यदि वो नीचे गिरता है, அப்ப அவங்க அப்பாவோ அம்மாவோ கதவை வந்து அடிப்பாங்க. So- அது விழுந்த இடத்த அடிப்பாங்க. அந்த குழந்தை சிரிக்கும். तो हम देखते हैं कि भाई बच्चा जब गिरता है तो वो जहाँ पे गिरता है उसके माता या पिता वो गिरे हुए जगह पे ज़मीन पे या दरवाजे को मारते हैं, तब वो बेटा जो है बच्चा जो है हंसता है. இந்த பழி வாங்கணும்னு அதுக்கு அம்மா சொல்லி கொடுத்தாங்களா அப்பா சொல்லி கொடுத்தாங்களா ஒரு பச்சை குழந்தைக்கு? ये बदला लेने का किसने सिखाया? क्या माता ने सिखाया, पिता ने सिखाया? அது உள்ளேயே இருக்கு. ये उसके अंदर ही है. ஒரு சர்ச்சில் ஒரு சின்ன பையன் வருவான். कलेसिया में एक छोटा सा बच्चा आता है. வந்த உடனே முழங்கால் போட்டுருவான். सो आते ही बरोबर सबसे पहला वो घुटने टेकता है. எல்லாரும் பாப்பாங்க 2 மணி நேரம் 3 மணி நேரம் முழங்காலே இருக்கானேன்னு. सो सब लोग देखते थे कि भैया क्या बात है, ये बच्चा जो है 2 घंटा 3 घंटा घुटने में रहता है. ஒரு நாள் எங்க பாஸ்டர் வந்து அவனை வந்து ரொம்ப நேரம் ஆயிடுதே பையனுக்கு கால் வலிக்குமேன்னு தட்டுனாரு. सो एक दिन पासवान ने उस बच्चे को, भाई बहुत देर हो गया, उसका पैर दर्द करेगा करके उसको थपथपाया. அவன் என்ன பண்ணானா தூங்கி எழுந்திருந்தான். तो उसने क्या किया, वो बच्चा जो था वो सो रहा था, सो करके वो जाग उठा. இது பண்ணணும்னு அவனுக்கு யார் சொல்லி கொடுத்தாங்க? ये सोना है करके किसने सिखाया उसको? முழங்கால்ல நின்னு எல்லாரும் இவன் வந்து பக்தியா இருக்கான்னு எல்லாரையும் நம்ப வச்சு. ஆனா அவன் தூங்குனான். சின்ன குழந்தை. सब लोगों को बताया कि भाई ये भक्ति में है, लेकिन वो छोटा सा बच्चा है, उसको कुछ भी नहीं मालूम. लेकिन उसको सिखाया किसने कि इस तरीके से एक नाटकीय जीवन जीने का? ஏன் தெரியுமா? ஆதாமோட வித்து இருக்கு உள்ள. क्योंकि आदम का जो बीज है उसके अंदर है. ஒரு வேப்ப மரைய விதைய போட்டா திராட்சை பழம் முளைக்குமா அதுல? क्या एक नीम के बीज अगर हम बोएंगे तो क्या उसमें हम अंगूर को कटनी करेंगे क्या? எங்க அம்மா நிறைய மாரல் ஸ்டோரிஸ் எல்லாம் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுப்பாங்க. டிசிப்ளின் வாழ்க்கை வாழணும், அதுதான் அர்த்தம். मेरी माँ जो है हमेशा एक नैतिक सीख हमेशा दिया करती थी. उनकी इच्छा यही है कि उसके बच्चे जो है एक सही आज्ञाकारिता का जीवन को जिए. அதெல்லாம் ராமாயணம் மகாபாரதத்திலேருந்து எடுத்து वो हमारी हिंदू ग्रंथों में से निकाल करके वो बातें करती थी. என்ன ஆசைனா நம்ம பிள்ளைங்க நல்லவங்களா வாழணும்னு. क्या उसकी इच्छा थी कि उसके बच्चे जो है अच्छा जीवन को जिए. எல்லா பேரண்ட்ஸும் அப்படிதான். सबके माता पिता की इच्छा यही है. பிள்ளைங்க நல்லவங்களா இருக்கணும். बच्चे लोग अच्छे बने रहे. அப்புறம் தான் ஆசைப்படுவாங்க பணக்காரங்களா இருக்கணும்னு. उसके बाद में ही उनकी इच्छा होती है कि वो बड़ी आशीषित रहे. ஆனா நம்ம வெளிப்படையா பாவம் இல்லாம வாழணும்னு நிறைய பேர் நினைக்கிறாங்க. बाहरी रूप में सब लोग चाहते हैं कि भाई सब लोग पाप से अलग ही रहे. சிகரெட் பிடிக்கிறவங்கள பார்த்தா கூட தனியா போய் பிடிச்சிட்டு வாசனை எல்லாம் போட்டுட்டு வருவாங்க. आप सिगरेट पीने वालों को देखोगे तो अकेले में जाएंगे, वो पी करके बास नहीं आए इसके लिए ना जाने मुंह में क्या क्या बातें डाल करके आते हैं. மனசுல தெரியும் இது தவறுன்னு. मन में मालूम है कि ये गलत है. ஆதாம் வித்துல நம்ம உருவாகி இருக்கிறோம். ये सब आदम ही के बीज के द्वारा हम सब लोग उत्पन्न हुए हैं. எல்லாரும் இப்படிதான். सब लोग इसी तरह से हैं. பாவம் உள்ள இருக்கு. पाप अंदर है. நம்ம தேவனை பத்தி வேதம் இப்படியா சொல்லுது, பாவத்தை பராத சுத்த கண்ணர். हमारे परमेश्वर के बारे में ऐसा लिखा गया कि जो पाप से अज्ञात था, जिसने पाप ही को नहीं देखा था, इतने शुद्ध उसके आंखें थी. பாவத்தின் சம்பளம் மரணம். पाप की मजदूरी जो है वो मौत है. அதனால தான் அவர் தான் ஒரே பேரான இயேசு அனுப்பினாரு. इसी के लिए परमेश्वर ने ये अपने एकलौते पुत्र यीशु को भेजा. அவர் தன் ஜீவனை கொடுத்தார். उन्होंने अपने जीवन को दिया.
சிலுவையில யாரும் இயேசுவை அடிக்க முடியாது. क्रूस में कोई यीशु को मार नहीं सकते थे, அவர் வானம் பூமியும் கொள்ளாத தேவன். क्योंकि वो आकाश और धरती को में भी नहीं समाएंगे, ऐसे परमेश्वर हैं। அவர் மரிக்கிறதுக்கு முதல் நாள் யூதாஸ் காரியத்துன்னு அவனுடைய சீஷன் ஒருத்தன் காட்டி கொடுக்கறதுக்கு 1000 பேரை கூட்டிட்டு வந்தானா. सो मरने के एक दिन पहले उनके अपने शिष्य यूदास इस्करियोत जो है, उन्होंने यीशु मसीह को बताने के लिए कम से कम 1000 लोगों को जहाँ पे यीशु मसीह वहाँ पे लेके आए। அவங்க கேட்டாங்க இயேசு யாருன்னு. तो उन्होंने पूछा कि इसमें से यीशु कौन है। இயேசு வந்து சொன்னாரு நான் தான் அப்படி சொன்னாரு. तो उसमें से यीशु ने कहा कि मैं ही हूँ जिसको तुम ढूंढ रहे हो। அவ்வளவு பேரும் கீழே விழுந்துட்டாங்க. सबके सब जैसे उन्होंने कहा कि मैं हूँ, सबके सब नीचे गिर गए। சர்வ வல்லமையுள்ள தேவன். हमारे परमेश्वर सर्व सामर्थी हैं। இப்ப பாருங்க அவரை யாராவது பிடிக்க முடியுமா? क्या अभी देखो कोई उसे पकड़ सकते हैं क्या? கொலை செய்ய முடியுமா? क्या उसके मर्डर कर सकते हैं क्या? அவரே தான் ஜீவனை கொடுத்தார். वही अपने आप को स्वयं उन्होंने अपने जीवन को दिया। அவர் என்ன தெரியுமா பண்ணாரு? उन्होंने क्या किया मालूम है क्या? மனம் திரும்புங்கள் பரலோக ராஜ்யம் சமீபமா இருக்குது. उन्होंने एक ही बात कहा कि मन को फेरो, परमेश्वर का राज्य निकट है। பரலோக ராஜ்யத்தை பத்தி வெளிப்படுத்தினாரு. परमेश्वर के राज्य के बारे में उन्होंने प्रकट किया। पितावागिய தேவனை பத்தி வெளிப்படுத்தினாரு. परमेश्वर के राज्य के बारे में उन्होंने प्रकटीकरण किया, परमेश्वर के बारे में प्रकटीकरण किया। வியாதியஸ்தரை சுகமாக்கினாரு. वो बीमार लोगों को उन्होंने चंगा किया, மற்றவர்களை உயிரோடு எழுப்பினாரு. वो मरे हुए लोगों को उन्होंने जिलाया। அதுக்கு தான் அவருக்கு சிலுவை மரணம். इसी के लिए उनका वो कलवारी क्रूस की मौत है, நமக்காக, हमारे लिए। एक पीटर 2:24 சொல்லுது, நான் பாவங்களுக்கு செத்துட்டேன், நீதிக்கு பிழைச்சிருக்கேன், என் பாவங்களை எல்லாம் இயேசு தன் சரீரத்துல சிலுவையில சுமந்து விட்டார். पहले पत्रस के किताब में 2 अध्याय का 24वां वचन इस प्रकार कहता है कि मैं वह आप ही हमारे पापों को अपने देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। முதலாவது நம்மளுக்கு பாவ மன்னிப்பு வேணும். सबसे पहला हमको पाप की क्षमा की जरूरत है। அதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இயேசுவை விசுவாசிக்கணும். उसके लिए क्या करना है? हमको केवल यीशु के ऊपर विश्वास करना है। எனக்காக உலகத்துக்கு வந்தார். मेरे लिए वो संसार में आए, எனக்காக மரித்தார். मेरे लिए वो मरे, என் இடத்துல அவர் பிராயச்சித்தம் பண்ணிட்டார். मेरे जगह पे वे प्रायश्चित बने, எனக்காக 3ஆம் நாள் உயிரோடு இருந்தார். मेरे लिए वो तीसरे दिन जीवित हो उठे। இதுதான் இயேசுவின் ரத்தம் சகல பாவங்களையும் நீக்கி சுத்திகரிக்கும். यही है यीशु का लहू सब पापों को क्षमा करता है। அவரை விசுவாசிக்கும் போது, उसको हम जब विश्वास करते हैं, நம்ம பாவ மன்னிப்பை பெற்றுக்கொள்கிறோம். हम हमारे पापों की क्षमा को प्राप्त करते நம்ம हैं। ஜீவனுக்கு முதலாவது இதுதான் தேவை. हमारे जीवन को सबसे प्रथम यही चाहिए। இரண்டாவது ரட்சிப்பு. दूसरा हमको उद्धार, உண்மையான தேவனை அறிந்து கொள்ளணும். सच्चे परमेश्वर को जानना है। அதாவது அவரை வணங்கணும். क्या यानी उसको हमें उसकी आराधना करना है। இதுல போட்டிருக்கு, வசனத்துல போட்டிருக்கு, தனது மகிமையினாலும் காருண்யத்தினாலும் நம்மளை அவர் அழைத்தாருன்னு இந்த வசனம். परमेश्वर का वचन कहता है कि उन्होंने अपनी महिमा और अपने करुणा से हमें अपने पास बुलाया। என்னுடைய பழைய வாழ்க்கையை நான் இப்ப நினைக்கிறேன். हमारे मेरे पुराने जीवन को जब मैं ये सोचती हूँ, என்னைய தாத்தா பாட்டி தான் வளர்த்தாங்க. मेरे दादा दादी ही मुझे बढ़ाए। என்கிட்ட 2 பலப்பம் இருந்தது. ஒரு நாள் கையில 2 பென்சில் இருந்தது. मेरे पास में 2 पेंसिल था। एक दिन ஒன்னு ஸ்கூலுக்கு எடுத்துட்டு போகணும், உன்னை பத்திரமா வைக்கணும். एक घर पे एक स्कूल पे लेके जाना और एक को अच्छे से संभाल के रखना है। எங்க பாட்டிட்ட நான் ஒன்னு கொடுத்தேன். मेरे दादी को मैंने एक दिया, எனக்கு நம்பிக்கை இல்ல அது பத்திரமா இருக்கும்னு. क्योंकि मुझे कहीं पे भी रखूं तो भी मुझे भरोसा नहीं था कि वो सही रहेगा करके। அந்த சின்ன வயசுல நாங்க போட்டோ வச்சு ஆராதனை பண்ணுவோம். அதுக்கு முன்னாடி எங்க பாட்டி வச்சுட்டு உன் பென்சில் பத்திரமா இருக்கும்னாங்க. நான் நிம்மதியா ஸ்கூலுக்கு போனேன். सो मेरी दादी ने वो सारे जितने भी तस्वीरें थे घर में, उन तस्वीरों के सामने रख करके कहा कि तेरा पेंसिल जो है वो सुरक्षित रहेगा। उसको सुन करके मैं एकदम शांतिदायक मैं स्कूल को गई। எங்க வீட்ல எல்லாமே நாங்க வந்து இந்த மாதிரி தான் பண்ணுவோம். हमारे घर में सब कुछ इसी तरीके से हम लोग करते थे। எங்களுக்கு தேவ பக்தியை வந்து இப்படியே அவங்க ஊட்டி ஊட்டி வளர்த்தாங்க. हमारे जीवन में परमेश्वर की भक्ति को इसी प्रकार से सिखा करके बढ़ाया।
ஆனா நான் இயேசுவை எப்படி ஏத்துக்கிட்டேன்னு எனக்கே சர்ப்ரைஸா இருக்கு. लेकिन मैंने यीशु को कैसा मेरा उद्धारकर्ता करके ग्रहण किया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी चमत्कार की बात है। எனக்கு வந்து கிறிஸ்தவங்களை பத்தி எதுவும் தெரியாது. मुझे मसीह लोगों के बारे में कुछ नहीं मालूम। எனக்கு இன்ட்ரெஸ்டும் இருந்தது கிடையாது. मुझे किसी उस मसीह लोगों के बारे में भी मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। ஆனா நான் எப்படி இயேசு பிள்ளையா மாறினேன்? लेकिन நான் ஒரு नाल நினைச்சேன், ஆண்டவர் இந்த வசனம் சொன்னாரு, அவர் தான் என்னை அழைச்சிருக்கிறார். सो मैं कैसा परमेश्वर की बेटी बनी, परमेश्वर ने अपने इस वचन के द्वारा मुझसे कहा कि उन्होंने ही मुझे अपने पास में बुलाया, அவருடைய இரக்கத்தினால, उनके दया से मुझे उन्होंने अपने पास में बुलाया। நம்மளுக்கு ரட்சிப்பு கட்டாயம் வேணும். உண்மையான தேவனை அறிந்து கொள்ளணும். हमको उद्धार जो है हमको अवश्य चाहिए, क्योंकि सच्चे परमेश्वर को जानना यही एक उद्धार है। பணம் இல்ல, அடுத்தது பணம் இல்லாம யாராவது வாழ முடியுமா? मुझे बताओ कि पैसे के बगैर कोई जीवित रह सकता है क्या? உங்களுக்குலாம் தெரியும், சர்ச் கட்டிக்கிட்டு இருக்கோம். आपको सबको मालूम है कि हम लोग कलीसिया बांध रहे हैं। எவ்வளவு பணம் தேவையா இருக்கு? कितने पैसों की जरूरत है? ஒவ்வொரு வீட்டுக்கும் எவ்வளவு பணம் தேவையா இருக்கு? आपको मालूम है कि हर एक घर के लिए कितने पैसे की जरूरत है? பணம் இல்லாம உலகத்துல வாழவே முடியாது. पैसे के बगैर इस दुनिया में हम लोग जी नहीं सकते। சுகம் இல்லாம வாழ்ந்துட முடியுமா? हम लोग बगैर चंगाई के जीवन को जी सकते हैं? எல்லா அவயவமும் கரெக்டா ஆண்டவர் படைத்த மாதிரி இயங்கணும். इसी के लिए हम सब जो भी परमेश्वर के जो रचा है उसी तरह से हमारे हृदय में भी इच्छा होनी चाहिए। சமாதானம், शांति கட்டாயம் வேணும். अवश्य चाहिए। பிள்ளைங்க வேணும். बच्चे लोग चाहिए। செழிப்பு வேணும். बहुतायत चाहिए। கனெக்ட் பண்ணி வாழ யாருக்கு தான் பிடிக்கும்? किसको ये पूरी तरह से यादी बना करके कितना है करके ऐसे जीने को किसको पसंद है? நீண்ட ஆயுள் வேணும் எல்லாத்தையும் அனுபவிக்கிறதுக்கு. एक लंबी आयु की जरूरत है, ये सब चीज आनंदित तरीके से इस्तेमाल करने के लिए। ஜீவனுக்கு தேவையானது அவங்கவங்களுக்கு பெரிய லிஸ்டே இருக்கு. जीवन की जो जरूरत है सब लोगों के पास में एक बहुत बड़ी यादी है। ஆண்டவர் சொல்றாரு, ஜீவனுக்கு தேவையானது எல்லாமே கொடுத்துடுறேன். परमेश्वर ने कहा कि तुम्हारे जीवन को जो भी जरूरत है वो सब मैं तुमको दूंगा। அடுத்தது தேவ பக்தி. तीसरा परमेश्वर की भक्ति। இது ஆத்மா சம்பந்தப்பட்டது. ये आत्मा से संबंध रखता है। இதுதான் நம்ம தேவனை நோக்கி வழி நடத்தும். यही है परमेश्वर की ओर से हमें चलाना। முடிவில நித்திய ஜீவனை தரும். आखिर में हमको अनंत जीवन देता है। நமது உள்ளான மனுஷன் இருக்கான் ஒருத்தன் தெரியும், அது ஆண்டவனோட வாழ்வான். हमारा एक भीतरी मनुष्य है जो परमेश्वर के साथ में जीता है। இதை யாரு தராங்களா? அவருக்கு திவ்ய வல்லமை நமக்கு கொடுக்குதாம். ये परमेश्वर की असीम सामर्थ हमें ये अनंत जीवन देती है। அதுக்கு என்ன பண்ணணுமா? उसके लिए हमें क्या करना है? எல்லாருக்கும் ஆசை தானே? सबको इच्छा है कि ना? जीवन को தேவ பக்திக்கும் परमेश्वर की भक्ति के लिए எல்லாத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளணும்னு सब कुछ प्राप्त करे करके, அதாவது இந்த உலகத்து தேவைகள் சொர்க்க ராஜ்யத்தையும் பெற்றுக்கொள்ளணும். इसका मतलब है कि इस धरती की जरूरत और स्वर्ग के राज्य को भी हम प्राप्त करें। அதுக்கு தேவனை அறிகிற அறிவுல வளரணுமா? इसके लिए परमेश्वर की पहचान में हम बढ़े। அதுக்கு எப்படிங்க வளர்றது? ये कैसा हम बढ़ सकते हैं परमेश्वर की पहचान में? தேவனை அறிகிற அறிவு எங்க கிடைக்கும்? परमेश्वर की पहचान हमको कहाँ पे मिलेगा? நான் படிக்கும்போது ஒரு பிரேயர் நடக்கும். मैं जब पढ़ाई करती थी उस समय में एक प्रार्थना चलता था। அப்போ ஒரு பாட்டு பாடுவாங்க. वहाँ उस समय में एक गीत गाया करते थे। எனக்கு இயேசுவை அப்ப தெரியாது. उस समय में मुझे यीशु नहीं मालूम। இயேசுவை நாங்க எங்க பார்க்கலாம்? यीशु को मैं कहाँ पे देखूं? அவர் பேசுறதை எங்க கேட்கலாம்? वो बोलते हैं वो मैं कहाँ पे मैं सुनूं? ஒரு மனுஷன் வந்து அழகான தோட்டம், கடல், அலைகள், அருவிகள், காற்று எல்லாத்தையும் தேடினானா இயேசு இருக்காரான்னு. एक आदमी है जिसने यीशु को जंगल में, पानी में, हवा में, सब जगह जहाँ भी ढूंढ सकते थे वहाँ सब ढूंढ के देखा कि क्या ही पे यहाँ पे यीशु मिलते हैं क्या करके, लेकिन कहीं पे भी उन्होंने यीशु को नहीं प्राप्त किया। கடைசில ஏமாற்றத்தோட பைபிளுக்கு முன்னாடி விழுந்து அழுதானோ. आखिर में उन्होंने अपने जीवन को हार स्वरूप में एक करके वो बाइबल के सामने घुटने टेक करके वो रोने लगे। கண்ணை திறந்து பாருன்னு ஒரு சத்தம் கேட்டுதான். तो आंखें खोल के देख करके एक आवाज सुनाई दिया। கண்ணை திறந்து பார்த்தா பைபிளுக்கு முன்னாடி இயேசு நிக்கிறாராம். सो बाइबल के सामने यीशु खड़े हुए उन्होंने देखा। இதுதான் அந்த பாட்டோட அர்த்தம். यही है उस गीत का अर्थ।
நான் இந்த பாட்டு என்னைக்கெல்லாம் பாடுவாங்கன்னு காத்துக்கிட்டே இருப்பேன். सो ये गीत कब कब लोग गाएंगे करके मैं हमेशा इंतजार करती थी. வேதம் சொல்லுது, वचन कहता है யோவான் 1:1, यूहन्ना 1:1, ஆதியில வார்த்தை இருந்தது, आदि में वचन था அந்த வார்த்தை தேவனிடத்தில் இருந்தது, और वो वचन परमेश्वर के पास में था அந்த வார்த்தை தேவனா और இருந்தது. वही वचन परमेश्वर है. அப்ப இதுல இருக்கிற வசனம் எல்லாம் இயேசுதான். यानी परमेश्वर के इस पवित्र शास्त्र में जो भी वचन है वो सब यीशु हैं. இயேசுவும் வசனமும் ஒண்ணு. सो यीशु और वचन दोनों एक है. இதுலதான் यही पे இயேசு यीशु தன்னை பத்தி हम अपने बारे में வெளிப்படுத்தி இருக்கிறாரு. अपने बारे में उन्होंने प्रकट किया है. அப்ப தேவன் அறிவுல வளரணும்னா यदि हम परमेश्वर की पहचान में यदि हमको बढ़ना है இதுல வளரணும். तो हमें बाइबल में बढ़ना है. ஒரு கப்பல் இருந்தாங்க, एक 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 जोड़ा थे, ரொம்ப அன்பான கணவன், एक बहुत अच्छे प्रेमी पति थे, நல்ல மனைவி, अच्छी पत्नी थी. ரொம்ப நாளா குழந்தை இல்ல. बहुत दिन इनको बच्चा ही नहीं हुआ. கடைசியில குழந்தை அவங்க கர்ப்பமானாங்க. फिर भाई एक दिन उनको बच्चा हुआ. ட்ரீட்மெண்ட்டுக்காக அந்த அம்மாவை ரொம்ப நாள் முன்னாடியே டெலிவரிக்கு அனுப்பிட்டாரு. सो ट्रीटमेंट के लिए वो अपनी पत्नी को डिलीवरी के पहले ही उसने अपने पत्नी को उसके घर में भेज दिया. குழந்தை பிறந்து கொஞ்ச நாள் கழிச்சு, ஒரு 10 நாள் கழிச்சு பார்க்க வராரு. सो बच्चा होने के 10 दिन बाद में वो बच्चे को देखने को आते हैं. அவங்க வாழ்க்கையில ஒரு குறையும் இல்ல. उनके जीवन में कोई कमी नहीं थी. அதனால எல்லாரும் குழந்தைக்கு என்ன வாங்கிட்டு வருவாரு? सो सब लोग सोचने लगे कि वो बच्चे को उसके पिता क्या लेके आएंगे. மனைவிக்கும் நினைச்சா என்ன வாங்கிட்டு வருவாரு குழந்தைக்கு? पत्नी ने भी सोचा कि उसको हुए बच्चे को उसका पिता क्या लेके आएगा. 2-3 सूटकेस நிறைய நல்ல நல்ல Dress வாங்கிட்டு வருவாரோ? हो सकता है कि वो 2-3 सूटकेस भर करके बच्चे के लिए कपड़ा लेके आएंगे. நல்ல நல்ல பொம்மைகள் வாங்கிட்டு हो வருவாரோ? सकता है कि अच्छे अच्छे खिलौने लेके आएंगे. அவர் வந்தாரு ஒரு சின்ன सूटकेस எடுத்துட்டு. वो आए, वो एक छोटा सा अटैची लेकर के आए. ஒய்ஃபுக்கு வந்து ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. सो पत्नी को बड़ा अचंभित हुई. पत्नी திறந்தாரு. उन्होंने खोला. ஒய்ஃப் ரொம்ப பாக்குறா, ரொம்ப நாள் பெருசா ஆசையா பிறந்த குழந்தைக்கு முதல்ல பாக்குறாரு, இவர் என்ன கொடுக்க போறாரு. सो पत्नी जो है उत्साह बड़े चाव से देख रही थी कि बहुत दिन के बाद में जो बच्चा हुआ है उसको उसके पिता क्या देने वाले हैं. ஒரு பைபிள் எடுத்தாரு. तो उन्होंने एक बाइबल को लिया. மனைவி கேட்டாங்க, என்னங்க குழந்தையாச்சே இது? तो पत्नी ने पूछा है, जी ये तो एक छोटा सा बच्चा है. அவர் சொன்னாரு, என் குழந்தை முதல்ல பைபிளை பார்க்கணும், பைபிள் தான் படிக்கணும். सो मेरा बेटा जो है सबसे पहला बाइबल को देखना है और बाइबल को ही पढ़ना है. ஏன்னா அவருக்கு தெரியும் ஜீவனுக்கும் தேவ பக்திக்கும் தேவையான எல்லாத்தையும் குழந்தை பெற்றுருவான் பைபிள்ல இருந்தான்னா. सो उसको मालूम था कि यदि जीवन को और परमेश्वर के भक्ति को जो भी चाहिए वो सब ये बाइबल अगर बच्चा समझ ले तो वो प्राप्त कर लेगा. அதனால உங்க பிள்ளைங்க என்ன வயசா இருந்தாலும் முதல்ல ஒரு பைபிள் வாங்கி gift பண்ணுங்க. इसी के लिए मैं आपसे कहना चाहती हूँ कि आपके बच्चे चाहे कितने भी बड़े क्यों न हो, सबसे प्रथम आप अपने बच्चों को एक पवित्र शास्त्र उपहार के रूप में दीजिएगा. இதுல இரண்டாவது வசனம் இப்படியா சொல்றது. यहाँ पे दूसरा वचन इस प्रकार कहता है, தேவனையும் परमेश्वर को நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசுவையும் அறிகிற அறிவினால் உங்களுக்கு கிருபையும் சமாதானமும் பெருக கடவது. दूसरे पत्रस की किताब में पहले अध्याय का दूसरा वचन इस प्रकार कहता है, परमेश्वर की और हमारे अनुग्रह और शांति तुम में बहुतायत से बढ़ती जाए. பெருகணுமா? ये बढ़ता जाए, இது ஆண்டவரோட ஆசை. ये परमेश्वर की इच्छा है. அதுக்கு ஒரே வழி, उसको एक ही मार्ग है. ரொம்ப செழிப்பான வாழ்க்கைக்கு आशीषित मार्ग के लिए एक ही मार्ग है. ஒரு அறிவு வேணும். एक ज्ञान की जरूरत है. டாக்டருக்கு படிக்க வேண்டாம், இன்ஜினியருக்கு படிக்க வேண்டாம். डॉक्टर को पढ़ने की जरूरत नहीं, इंजीनियरिंग को पढ़ने की जरूरत नहीं है. ஆனா இது படிக்கணும் கட்டாயம். लेकिन पवित्र शास्त्र को अवश्य पढ़े. நம்ம தேவன் யாரு? हमारा परमेश्वर है कौन? அவர் இரக்கம் எப்படிப்பட்டது? वो कैसे दयालु हैं? அதெல்லாம் பத்தி நல்லா அறிஞ்சுக்கணுமா? ये उसके बारे में अच्छी तरह से इस पवित्र शास्त्र से ज्ञान पाए. இது ஆண்டவர் விரும்புறாரு. ये परमेश्वर की इच्छा है. என் பிள்ளைங்க मेरे बच्चे என்ன குறிச்சு வளரணும், என்ன குறிச்சு அறிவுல வளரணும். मेरे बच्चे मेरे ज्ञान में बड़े करके ये परमेश्वर की इच्छा है. இது பண்ணிக்கிட்டே இருந்தோம்னா ये अगर हम करते ही रहेंगे, ஆசீர்வாதம், आशीष, நம்மளுக்கு என்னென்ன தேவையோ जो भी जरूरत है எல்லாமே நம்மளுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்கா கிடைச்சிரும். सब कुछ अपने आप मिलता जाएगा.
ஆண்டவர் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிக்கிறார். परमेश्वर सबको आशीष करता இந்த है। வசனத்தை கேட்டவங்க எல்லார் வாழ்க்கையிலயும் ये वचन को जो सुने हैं सबके जीवन में அவங்க ஆசைப்பட்டதெல்லாம் ஆண்டவர் கொடுக்க போறாரு. उनके हृदय की सारी इच्छा परमेश्वर देगा। ஒன்னே ஒண்ணுதான், एक ही चीज, அவரை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசை வரணும். परमेश्वर के बारे में जाने करके इच्छा रखे। यीशु के नाम से आमीन।